अहंकार बाह्य जगत की सीमित वास्तविकता में ही सहज महसूस करता है। वही वह पनप सकता है, वही उसका पिंजरा है। भीतर के उच्चतर आयामों में प्रवेश करने के लिए उसे अपना अस्तित्व खोना पड़ता है। आप तो असीम बहुआयामी चेतना है। चेतना के आकाश में ध्यान आपके पंख है, ज्ञान आपकी दिशा, उड़ान आपकी प्रतीक्षा में है। तो होता क्या है कि व्हेन यू आर फुल्ली चार्ज्ड विद ईगो, right, with your identity, your personality self, you're always trapped in the three-dimensional reality, or three-dimensional reality of time, space, people, places, things, time, event. हम उसी reality में trap होके रह जाते हैं. We are at the lower level of pyramid, so we are always stuck in this three-dimensional reality of world of things, right? But we are multi-dimensional beings. We came here to fly, है ना? हम यहाँ रेंगने नहीं आए, यहाँ हम उड़ने आए हैं। बट हम रेंगते हुए ही मर जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि अरे हम उड़ भी सकते हैं, हम उड़ान भी भर सकते हैं। क्योंकि ये जो थ्री डायमेंशनल रियलिटी में जो हमको सिखाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया, हम समझते हैं कि उतनी ही बात सच है, उतनी ही सच्चाई है। बट वी आर एक्चुअली फार बिगर देन दैट। वी कैन फ्लोट बिटवीन डायमेंशंस, राइट? वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग, वी कैन मूव बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. We can leave this body, we can have outer body experiences, right? We can have third eye experiences, third eye visions, right? We can create from different dimensions. We can manifest from different dimensions. Hard work is not the only way to manifest, right? We can create with the power of thought and emotion. इसीलिए मैंने कहा है कि अहंकार बाह्य जगत की सीमित वास्तविकता में ही सहज महसूस करता है। Because ego feels comfortable there. The moment you move to four-dimensional reality or fifth-dimensional reality, the only way you can enter that dimension is by becoming nobody. By becoming nobody, nothing, nowhere, no place, no time. That means you have to lose your identity. And if you have to lose your identity, ego feels threatened. That means you're killing your ego. You have to kill your ego to move beyond that reality. So you see this pyramid, when you're full of ego, you're trapped in this lower end of the pyramid, in this three-dimensional reality of time and space, where everything is about hardware, body. Everything is about time and space. That's why everything takes time to manifest. But when you become nobody, nothing, no place, nowhere, no time, when you meditate, when you observe your breath, you move into fourth dimension. Because now you're vibrating faster than the speed of light. And that is the way the nexus of the quantum is. Now you're vibrating, but at a much higher frequency. So when you are vibrating at a higher frequency, you tune into the higher frequency. You tune into the dimensions of higher frequency. It's only about resonant frequency. ये कोई जगह नहीं है कि जहां आपको जाना है, ये आपके वाइब्रेशंस को चेंज करना है। जैसे आपके वाइब्रेशंस एट हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, you start tuning into the frequency of higher vibrations, into the dimensions of higher vibration frequency. And then you can create from that dimension, where time and space collapses. इसलिए वहां पे कोई भी चीज होने में टाइम नहीं लगता है, आप सोचो और वो होने लगेगा। थ्री डायमेंशन में बिकॉज द एनर्जी इज सो डेंस, हर चीज को होने में बहुत टाइम लगता है। और क्योंकि टाइम लगता है, भूल जाते हो कि आपने एक साल क्या पाना चाहा था। इतने रुकाव आ जाते हैं कि आप उसी में खो जाते हो। फिर आप भूल भी जाते हो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरा लाइफ गोल क्या है। बॉम्बे से मान लीजिए मैं निकला था बैंगलोर जाने के लिए, अब रास्ते में ही मान लीजिए पनवेल आ गया, वहां पे मान लीजिए मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने किसी के घर पे रुक लिया, अंधेरे में कोई गांव में रुक गया, सुबह देखा अरे तो बहुत सुंदर लड़की है यार, उसके प्यार हो गया, फिर वहीं शादी कर लिया, वहीं बस गया, अब भूल गया कि मेरे को बैंगलोर में जाना था। इन थ्री डायमेंशनैलिटी वर्क ऑलवेज एक्सपैंड विद टाइम। और ये अगर फ्लाइट में बैठा अपना सीधा फ्लाइट लिया, 1.5 घंटे में बैंगलोर पहुंच गया। तो स्लोअर द डायमेंशन, the more time it takes, the more you'll forget what was your goal, what was your intention. हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम सब भूल जाते हैं। हम थ्री डायमेंशनल रियलिटी में उलझ के ही रह जाते हैं। यहाँ प्रकृति आपको उसके माया जाल में फंसा के रख देती है। हम भूल जाते हैं कि हम प्योर कॉन्शियसनेस है। We forget our true self. But when you become nobody, when you drop your identity, when you drop all resistance, the moment you drop all resistance, you are vibrating at a faster frequency. And that's how you tune into a frequency of higher dimension.
फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन रियलिटी। ये कोई ऐसी जगह नहीं कि अरे कोई वो आयाम है कि ऊपर आपको वहां पहुंचना है। दैट डायमेंशन इज विद इन अस। दैट्स व्हाई जीसस सेड द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट सम फिजिकल किंगडम। ये तो डायमेंशनल साम्राज्य है, वो सब हमारे अंदर ही है। उसके लिए कोई तीर्थ स्थल, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई मंत्र, कोई तंत्र की जरूरत नहीं है। जहां बैठ के आपने अपने वाइब्रेशंस को उच्चतर कर लिया, वही तीर्थ स्थल बन गया। क्योंकि वहीं आप अपने अंदर अपने बुद्धत्व से जुड़ गए, अपने भगवान स्वरूप से जुड़ गए, राइट, अपने शिव स्वरूप से जुड़ गए, तो वही मंदिर हो गया, वो जगह ही मंदिर हो गई। तो कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। पर अहंकार हमें बाहर जगत में ही सहज महसूस करता है। ये अहंकार का लक्षण है, बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस ईगो कैन सर्वाइव, एंड ईगो ऑलवेज वांट टू सर्वाइव, व्हाई शुड इट डाई? आपने बचपन से कितनी मेहनत की है अहंकार को बड़ा 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 करने के लिए। अब उस इतना विशाल स्वरूप ले लिया है। अब आप वो सोचो कि मैं आज स्पिरिचुअलिटी में आ गया तो एक झटके में अब वो खत्म हो जाएगा, तो इतनी जल्दी थोड़ी वो आप हार मानने वाला है। करते हैं आप ध्यान, हम भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। वो ध्यान में तो हो सकता है कुछ समय चले जाए, पर जब आंखें खोलते दुनियादारी में जाते हैं, वापस से वो जाग उठता है, वापस से वो अपनी पकड़ बना लेता है, वापस से वही उलझा देता है, राइट। पर फिर होते हैं कुछ महापुरुष जो इस चाल को समझ जाते हैं अहंकार की। रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, जो अब फिर वो जाल में आते नहीं है, वो हमेशा जागे हुए हैं। They always know they are pure consciousness. Ego is not able to trap them. That's why they are always in different dimensions. They always see from a different dimension, from a deeper eye, not just the surface eye. So when the soul has a deep desire and a longing to realize itself, then प्याज के छिलकों को जितना छीलते हैं और अंदर 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 एक एक छिलका छीलते हैं, फिर दूसरा छिलका, फिर दूसरा छिलका, तो अंदर की जो जो गहरी परतें हैं संस्कारों की, पास्ट लाइफ के कर्मों के, ये नकारात्मक भावनाओं की, धीरे धीरे ये सब पील होके और उजागर होती है। तो एक तरफ तो आपने स्पिरिचुअलिटी चाहा है, यू वांट योर एनलाइटनमेंट, योर सेल्फ रियलाइजेशन, बट देन जितने भी बैरियर्स हैं वो सब आपको उसका सामना तो करना पड़ेगा, so that you finally have victory over them. You encounter them to win over them. So it is for you, not against you. अहंकार बाह्य जगत की सीमित वास्तविकता में ही सहज महसूस करता है, वही वह पनप सकता है, वही उसका पिंजरा है। जब तक कि हम उसी में सीमित रह जाएंगे, अपने अहंकार के सीमित स्वरूप में ही सीमित रह जाएंगे, तो अपने असली स्वरूप, अपने विशाल स्वरूप, अपने विराट स्वरूप को हम जान नहीं पाते हैं। कुएं के मेंढक बन के रह गए, हमें पता ही नहीं कि अरे कुएं के बाहर भी इतनी बड़ी दुनिया है। तो भीतर के उच्चतर आयामों में प्रवेश करने के लिए उससे अपना अस्तित्व खोना पड़ता है। अहंकार हैज टू लूज इटसेल्फ, हैज टू ड्रॉप इटसेल्फ टू एक्सपीरियंस द इनर डायमेंशंस, इनर हायर डायमेंशंस। आप तो असीम बहुआयामी चेतना है, यू आर इन्फिनिट मल्टी डायमेंशनल बीइंग, राइट। यू कैन नॉट बी ट्रैप्ड बाय एनीथिंग। आप असीमित हैं, आप शाश्वत हैं। न कोई आपको मार सकता है, ना आपको जला सकता है, ना कोई आपको काट सकता है। दैट इज योर ट्रू सेल्फ, योर प्योर कॉन्शियसनेस। चेतना के आकाश में ध्यान आपके पंख हैं, तो ध्यान को हम माध्यम बना के हम वो उड़ान भर सकते हैं। ज्ञान आपकी दिशा, राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम ओनली ट्राइंग टू गिव यू द राइट अंडरस्टैंडिंग, द राइट पर्सपेक्टिव। इट्स नॉट अ बिलीफ, इट्स नॉट अ फेथ, it's a scientific understanding. If you understand it, then everything is so crystal clear. Then there is no illusion. तो चेतना के आकाश में ध्यान आपके पंख हैं, ज्ञान आपकी दिशा, उड़ान आपकी प्रतीक्षा में है। The soul is waiting to meet you. वो भी बेचैन है आपसे मिलने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। इट्स ओनली अ रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। सेल्फ तो था ही, बट आप भूल गए थे, इसलिए सिर्फ खुद को खुद के ओरिजिनल खुद से मिलना है। दैट्स व्हाई इट्स सेल्फ रियलाइजेशन। उसकी अनुभूति है, बस अंतरात्मा की अनुभूति है, आत्मबोध है।
आत्मा तो थी, हमेशा ही है और रहेगी। हमको उसका बोध नहीं था। हम तो उससे ओत-प्रोत थे ही। मछली तो पानी में ही थी ही, बट उसे पता ही नहीं कि यही पानी है और बोल रही थी कि मैं तो प्यासी हूँ, मैं तो प्यासी हूँ। तो सेम हमारी हालत है, हम तो आत्मा में ही हैं। आत्मा से ओत-प्रोत है। वही शाश्वत, वही भगवान स्वरूप से ओत-प्रोत है और ढूँढ रहे हैं, अरे भगवान कहाँ, भगवान कहाँ, भगवान कहाँ मिलेगा?